Hello students, in last video we have seen the meaning of democracy and the forms of democracy, and now in this lecture we will start with the various theories and concept of democracy. So let's start the video. We will see the first theory of democracy, that is traditional theory of democracy, western theory of democracy, and we can popular theory of democracy. The major thinker of this type of theory were Hobbes, Locke, Rousseau, Bentham, etc. So let's see what are the features or what are the beliefs of the theory. Man has the ability to understand the self-interest is inherent. The first one was. The second one was all persons are basically equal. The third one is the government should be formed according to the liberal and democratic constitutionalism. The fourth one is the basic power of government is the will of people. I hope you are understanding. The language is so easy. That fifth one is there are some fundamental rules of governance. First is government should be run by the representative of people. We know that direct democracy and indirect democracy. So in indirect democracy, government run by the representative of people. Is that clear? The next one is the principle of majority should be followed. Government should be responsible to the people. Protection of the people should be the purpose of government. What should be the purpose of government? Protection of the people, protection of the public. And the government is responsible to the people also. Clear? The next one is people should enjoy civil liberties and true justice. The both are the main pillars of democracy. That is traditional theory of democracy, we can say. So people should enjoy the civil liberties and true justice. Clear? Free and fair election should held after certain fixed period. How should be? The election should be held after certain fixed period, and election should be free and fair. Free means without any burden, without any stress, and fair, that there should not be bogus election or bogus voting also. Is that clear? More than one political party should be there to contest election. There should be more than one political parties. As like in India has many political parties, some national, some regional. Is that clear? So that there can be a watch on the running government or running government political party also. And the next one is government should respect the public opinion. If we see the second theory of democracy, that is pluralist theory and approach of democracy. And who were the developers? The developers were H.J. Lasky, then Ernest Barker, Miss Follett, G.D.H. Cole, and Digweed. Is that clear? What's the definition? And that was the due about discussing the mark weightage of the chapter. 5 marks. The mark weightage of chapter is 5 marks. This chapter democracy, in exam there is mark weightage of 5 marks. One is for very short type question. एक very short question पूछा जाता है, that is for 1 mark, and the other one is for 4 marks. Second question जो है वो 4 mark के लिए पूछा जाता है, जो short type of question है. क्लियर? तो ये है इस चैप्टर की मार्किंग वेटेज. क्लियर? 5 नंबर के लिए ये चैप्टर आएगा आपके एग्जाम में, जिसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे. एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप जो 1 मार्क के लिए होगा, और अनदर आएगा शॉर्ट टाइप जो 4 मार्क्स के लिए होगा. ठीक है? तो टोटल आपके 5 मार्क्स होते हैं. 1 मार्क में डेमोक्रेसी कौन से वर्ड से बनी है, कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से बनी है. 4 इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट है. ठीक है? 4 मार्क्स के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स पूछ लिया जाए, या किसी एक थ्योरी को, एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए, या व्हाट इज़ डेमोक्रेसी डिफाइन करने के लिए भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो उस समय आपको 1-2 थिंकर्स की जो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस लिखी थी, उन डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस उसमें इंक्लूड करनी है, और प्लस ग्रीक लैंग्वेज के डेमोस और क्रेशिया से बना हुआ वर्ड डेमोक्रेसी का पूरा वर्बल मीनिंग आपको वहाँ पर बताना है. प्लूरलिस्ट थ्योरी भी एग्जाम में पूछा गया है
ये भी इम्पोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, 2 से 3 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ सोशो पॉलिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो सोशो पॉलिटिकल टाइप की थ्योरी है, इन विच मेनी प्राइवेट ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप प्ले देयर पार्ट इन द पावर ऑफ स्टेट। और ये डेफिनेशन इसकी दी है रॉबर्ट प्रीथर्स ने। क्लियर? इसकी बिलीव, इसका फीचर क्या है? तो बिलीव्स इन फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के फेडरल फॉर्म में ये थ्योरी बिलीव करती है। उसके बाद हम देखते हैं द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। तो मार्क्सिस्ट नाम से ही हमें पता चल गया कि जो कार्ल मार्क्स थे, ओके, जो कार्ल मार्क्स थे एक फिलोसोफर होके गए और उनके फिलोसॉफीज को मानने वाले आगे जो उनके फॉलोअर्स थे वो मार्क्सिस्ट कहलाए। इज दैट क्लियर? इट इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी बाय नेचर। बाय नेचर मतलब प्रकृति से या इसके कुछ फीचर से ये इकोनॉमिक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। मार्क्सिस्ट कॉल्ड इट्स पीपल्स थ्योरी, इसे पीपल्स थ्योरी भी कहते हैं, लोगों की थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी नाम देख लिया हमने एक, सेकेंड इकोनॉमिक थ्योरी देख लिया, एंड थर्ड इज पीपल्स थ्योरी देख लिया। तीनों नाम से आए तो आपको ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रूट आइडिया जो हैं वो अभी हमने देखा कि कार्ल मार्क्स की आइडिया से, उनके आइडियोलॉजी से, उनके सिद्धांत से लिया गया है। एंड द प्रैक्टिकल फॉर्म वाज गिवन बाय लेनिन, स्टालिन और माओ से। ये इनकी प्रैक्टिकल थ्योरी बताते हैं, मतलब सबसे स्टार्टिंग में इनके सिद्धांत को फॉलो करते हुए इस थ्योरी का आविर्भाव हुआ और फिर इन्होंने इसका प्रैक्टिकल फॉर्म बताया। क्लियर? द अलाइटिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेवलप करी गई है एलाइट क्लैन, रॉबर्ट माइकल, मॉस्का, देन पास्ट्रियो, देन ब्रह्म, सी राइट, मिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखते हैं इस थ्योरी का, देन व्हाट इज दैट इज रॉबर्ट माइकल अ जर्मन थिंकर। यहाँ पर भी जो हम अभी वेरी शॉर्ट की बात कर रहे थे, तो 2 थिंकर्स की 2 बुक्स है, तो आपको थिंकर के नेम के साथ वो कहाँ के हैं और प्लस उनकी बुक का नाम क्या है ये याद रखना है। तो हम पहले बात करते हैं रॉबर्ट माइकल की, जो जर्मन थिंकर थे और उन्होंने अपने विचार कौन सी बुक में प्रेजेंट करे? पॉलिटिकल पार्टीज में। क्लियर? सेकंड हम बात करते हैं एन इटालियन स्कॉलर पुट हिज थॉट्स इन द बुक नेम्ड द रूलिंग क्लास। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द सोशलिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। लिबरल थ्योरी देखी हमने, लिबरल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों का समन्वय जो है इस सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर है। दिस थ्योरी वांट्स टू अचीव द प्रैक्टिकल फ्रीडम ऑफ द पर्सन एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ साथ ये जो सोशलिस्ट थ्योरी है ये चाहती है कि लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिले। ठीक है, and the next is this theory believes in evolutionary and development, means instead of revolution and violence the expected achievement can be fulfilled by adopting parliamentary theory। और अगर हम इन दोनों थ्योरीज के समन्वय की बात करते हैं, लिबरल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी, तो थिंकर्स के अनुसार ये थ्योरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो करने से मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी वेरियस थ्योरी जो है डेमोक्रेसी की और कंसेप्ट जो है डेमोक्रेसी की वो कंप्लीट होती है। लेट्स सी द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देन वी कैन categorize democratic government into 2 forms of government. First is direct democracy and second is representative democracy. We have put some diagram to understand here. Look, in direct democracy, the mob, the public directly rule over the country, and in representative form of democracy or indirect form of democracy, the mob elect their representative and they have indirect supremacy power on the governing system. Is that clear? So let's see direct democracy. Look, we can say the people say yes or no and take decision all over and enjoy the direct rule over the country. पब्लिक इंजॉय द सॉवरेन पावर, दोनों में होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी हम देखते हैं कि पब्लिक इंजॉय द सॉवरेन पावर, बट हाउ दे इलेक्ट their representative by electing their representative in indirect democracy. But in direct democracy, public direct enjoys sovereign power
takes decision related to policies, makes laws and appoints administrative official also. The third feature is possible only in small states, क्योंकि एक वास्ट या बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया के अंदर सबके विचार, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं और बहुत हौच पौच हो जाएगा अगर इस तरह से करेंगे, बहुत मैशअप हो जाएगा, प्रॉपर गवर्निंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी. एंड दैट्स वाई ये सिर्फ स्मॉल स्टेट्स में ही पॉसिबल होता है. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स द डायरेक्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज फाउंड ओनली इन 5 स्टेट्स ऑफ स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड कंट्री के 5 स्टेट में जो है अभी डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्लाइड है और ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है. बाकी सब जगह रिपब्लिक कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है. Clear? Let's see the indirect democracy, and in graphic we can see that these are the public mob and they just elect their representative, and now representative has public enjoys the power through their representatives. Clear? So let's see. फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट्स. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है लगभग सभी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में मिलती है. पब्लिक एक्सरसाइज द पावर थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव. J.S. मिल कहते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज एन अरेंजमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी अरेंजमेंट है इन विच द होल पब्लिक इंजॉय द पावर ऑफ गवर्नेंस. बट कैसा? थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर इलेक्टेड, जिन्हें ये अपना वोट देकर पब्लिक इलेक्ट करती है और फिर इनके थ्रू जो पब्लिक है, जो मॉब है, वो अपना राइट इंजॉय करती है. ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी की अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ रूल इन विच एवरीवन टेक्स पार्ट. ऐसा सिली कहते हैं या सिले हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, कि डेमोक्रेसी एक इस तरह का रूल है जहाँ पर सभी लोग पार्ट करते हैं. सेकंड, अब्राहम लिंकन, very famous definition, and we learn that democracy is the government of the people, by the people, for the people. लोगों के द्वारा, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो चलाई गई गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, ऐसा अब्राहम लिंकन कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डाइसी क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ नेशन एक्ट्स एज अ रूलर. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम होता है, प्रशासन का तरीका होता है जिसमें ऑलमोस्ट देश के सभी लोग जो हैं एज अ रूलर पार्ट करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे लॉर्ड ब्राइस की. वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ रूल इन विच द गवर्निंग पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट वेस्टेड इन एनी स्पेशल क्लास इन द मेंबर ऑफ होल सोसाइटी. ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल का फॉर्म है, एक ऐसा शासन है जिसमें गवर्निंग पावर जो है वो किसी एक क्लास के पास, किसी एक सोसाइटी के पास नहीं रहते हुए ऑल ओवर सोसाइटी के सारे मेंबर, देश के सारे मेंबर्स के अंदर निहित होता है. तो यहाँ पर हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के काइंड्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहेंगे, ये दोनों फॉर्म हमने प्रॉपर समझ लिए. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द थिंग्स, द स्टेट्स दैट इज नीड टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए हम देश में या पब्लिक को कौन कौन से रूल मानने चाहिए, तब एक डेमोक्रेसी जो है हम कह सकते हैं कि सक्सीड डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.